What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 16th of April, and today was Sensex weekly expiry. So amidst all that chaos that's happening in the world, yesterday US markets hit a fresh all-time high. Of course, Indian markets are nowhere close to our all-time highs. In fact, 2,500 points हम all-time high के नीचे है. Almost 10% हम अभी भी all-time high के नीचे है. But considering where the markets were just 10 sessions before, that is somewhere around 22,000 levels, we are at a much better position. So 24,000 के above एक decisive close मिल रहा है for the last two sessions. तो we were talking about this 24,500 level, एक 24,400 and 24,600 के बीच में एक 200 पॉइंट का एक बैंड है which will be acting as some sort of a resistance, and today for the first time the markets hit that resistance and वहां से एक 300 पॉइंट का एक मार्केट्स में सेलिंग देखने को मिला है. So Nifty from exactly 24,400 levels, it almost sell off of 300 points, but in spite of this 300 point sell off, there has been no spike in the walls, there has been no spike in the India VIX. In fact, India VIX आज another 4% crush देखने को मिला है. So today's sell off was mostly construed as some sort of a profit booking and not a sell off. So यहाँ पे profit booking 24,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए. 24,000 के आसपास मार्केट्स फिर से एक सपोर्ट ले लेनी चाहिए, and then once we start getting daily closes about 24,500 levels, then we can start thinking about the bullishness coming back into our markets. To talk about today's expiry, Sensex straddle आज 400 points पे open हुआ. तो yesterday we were talking about this कि Sensex straddle might be opening at 400 and it should not be surprising for us, and 650 पे कल close दिया था and 250 points का एक overnight crush देखने को मिला. And even after opening at such low 400 point premium, the straddle continued to decay in the first 90 minutes. 400 से लेके 300 तक एक linear crush markets में देखने को मिला, but once the market started entering the yesterday's range, basically yesterday's का high जो था, it should have acted as some sort of a support, but जब वो support breach होके markets yesterday's range के अंदर trade करना शुरू किया, वहाँ पे एक थोड़ा बहुत repricing of walls देखने को मिला. The straddle actually spiked from 300 levels to 360 levels. एक 60 point का एक spike straddle में देखने को मिला, but after that again there was a linear crush. But the second leg of today's fall was quite brutal. 78,500 से लेके almost 77,800 तक एक 800 points का एक brutal fall देखने को मिला in a span of less than 30 minutes, and even after 2 o'clock there was a sharp recovery. 77,700 से लेके 78,200 तक again एक 500 point का recovery देखने को मिला, which spiked the calls by more than 6-7 times, and in the down move the puts also had gone up by almost 6-7 times. So in no way today's expiry was easy, but if one managed to get out of the spiking options, so जो options spike हो रहे थे उस option से right time पे अगर आप निकलते तो you would have done quite well in today's expiry. So personally I made around 0.4% in today's expiry. Let me know in the comments आपका expiry कैसा रहा. And tomorrow it's Friday and the markets are again going into the weekend with a lot of optimism, with a lot of bullish bias, because the markets are decisively trading about 24,000 levels. So कल का price action काफी important हो जाता है कि अगर 2 दिन markets थोड़ा बहुत sideways हो जाए and then on Monday और next coming 2-3 दिन में 24,500 के ऊपर एक daily close मिल जाता है, तो then we can safely say that the bottom is in place. So let's get to the terminal and let's see कल के फ्राइडे को हम लोग कैसे ट्रेड करना चाहिए. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस लेवल एंड कल मैंने बताया था कि इस लेवल के आसपास 24,400 24,500 के आसपास दो तरह के प्राइस एक्शन पॉसिबल है. फर्स्ट इज दिस विल एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग लेवल एंड मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ जाना चाहिए, एंड ये जो डिप है वो डिप शुड बी कंटेन्ड विद इन 24,000 लेवल्स. 24,000 इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 23,800 के आसपास मार्केट्स फिर से एक सपोर्ट लेके इस हाई को तोड़ना चाहिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस. सो आज एक यहाँ से एक डेफिनेटली एक सेल ऑफ देखने को मिला है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, एंड एनी क्लोज अबाउ दिस लेवल, ठीक है, एनी क्लोज अबाउ दिस लेवल एंड वन मोर फॉलो थ्रू शुड मेक 22,000 लेवल एज सम सॉर्ट ऑफ अ सैक्रोसैंक्ट बॉटम. तो जैसे जैसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज मिलना शुरू हो जाएगा, देन आर बायस पोजिशनली स्पीकिंग शुड ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू स्लाइटली बुलिश. ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो द मार्केट्स वो क्वाइट वोलेटाइल टुडे. मतलब कल आप देख सकते हैं कि लाइक एवरी टाइम द मार्केट स्टार्टेड ट्रेडिंग अबाउट 24,000 लेवल्स, तो मार्केट्स 150-200 पॉइंट के रेंज के अंदर रहा, बट टुडे द मार्केट्स एक्चुअली मेड ऑलमोस्ट अ 300 पॉइंट का रेंज. 24,400 से लेके 24,100 तक मार्केट में एक यूनिडायरेक्शनल फॉल देखने को मिला, ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, एंड उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वी सॉ अनदर 150-200 पॉइंट्स ऑफ अप मूव, एंड दिस वाज क्वाइट वोलेटाइल. ऑफ कोर्स ये जो वोलेटिलिटी है निफ्टी के नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं होगा, बट टुडे सेंसेक्स एक्सपायरी ऑप्शंस वर क्वाइट ब्रूटल, एंड यहाँ पे from this bottom to this level the calls actually spiked by more than 6-7 times. ठीक है, so to talk about Sensex expiry, so as I said, the
वॉल्स वर क्वाइट चीप टू बिगिन विथ, ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ पे स्ट्रैडल खुला था एंड 300 तक ऑलमोस्ट एक डिसेंट वन डायरेक्शनल काइंड ऑफ क्रश देखने को मिला, बट यहाँ से थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिला एंड उसके बाद आफ्टर 2 o'clock देयर वाज अ वेरी शार्प डीके 250 पॉइंट्स, बट ये डीके इतना आसान भी नहीं था कैप्चर करने के लिए बिकॉज द मार्केट्स हैड मूव्ड 800 पॉइंट्स, एक 800 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला एंड उसके बाद 600 पॉइंट्स का एक रिकवरी भी देखने को मिला विथ अराउंड 300 पॉइंट स्ट्रैडल, तो विच वॉज क्वाइट हार्ड टू मैनेज. तो until unless you got out of the spiking options, things would have been little tricky for you. ठीक है. सो टुमारो निफ्टी 2DT है एंड निफ्टी का स्ट्रैडल जो है 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है. इफ यू नोटिस द एंटायर डे द निफ्टी स्ट्रैडल्स वो क्वाइट एराटिक बिकॉज मार्केट्स 24,400 के आसपास जरूर खुला, बट बिकॉज ऑफ दिस 300 पॉइंट फॉल देयर वाज अ मोमेंटरी स्पाइक इन द ऑप्शंस एंड वंस द मार्केट स्टार्टेड टू रिकवर देयर वाज अ क्रश एंड अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अगेन देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ क्रश, आई मीन देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ स्पाइक. 360 से 385 के आसपास स्ट्रैडल स्पाइक हुआ है. सो टुमारो आई एम नॉट गोना गेट इनटू द गेसिंग गेम ऑफ वेयर द स्ट्रैडल is going to open and where the straddle is going to close. It all depends on where we are going to open and whether there is a news flow and whether there is an anticipated news flow of whatever the war that's going on. So market वीकेंड के अंदर कैसे जाना चाहता है, कैसे घुसना चाहता है, दैट विल बी टोल्ड ओनली एट द डे एंड बाय टुमारोज ट्रेडिंग सेशन. ठीक है. तो टुमारो हमको कैसे ट्रेड करना पड़ेगा, तो वन इज टुडेज हाई विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ लोकल मैक्सिमा एंड इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिलना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली गोइंग इन टू द वीकेंड बिकॉज लास्ट टाइम भी जब हम ऐसे एक 24,000 के ऊपर फ्राइडे के दिन क्लोज करके मार्केट गया था, उसके बाद अगेन फिर से एक अच्छा वाला गैप डाउन ओपन हुआ था. तो दैट मेमोरी विल बी फ्रेश इन द ट्रेडर्स माइंड, सो मोस्ट पीपल विल नॉट ट्राई टू टेक द इंडेक्स क्वाइट हाई towards the end of the trading session tomorrow. तो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट थोड़ा कॉशन के साथ ही वीकेंड को अप्रोच करने वाला है बिकॉज मार्केट्स में ऑलरेडी 2,500 पॉइंट का एक रिकवरी देखने को मिल चुका है. ऑलमोस्ट 22,000 से लेके 24,500 तक एक 2,500 पॉइंट्स का एक रिकवरी देखने को मिल चुका है. until unless market gets some sort of a surety that nothing sinister would happen over the weekend, no negative news would come over the weekend, very low chances that this high will be taken out tomorrow. but अगर 10 o'clock के पहले मार्केट मान लो कि गैप अप खुला, 10 o'clock के पहले ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, देन वी शुड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट. बट आई वुड नॉट एडवाइज यू टू कैरी एनी नेकेड पुट्स ओवर द वीकेंड. अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप भी खुलता है एंड मंडे के दिन एक रैली भी देता है, देन वो रैली हमको जाने देना पड़ेगा. ठीक है. व्हाट इफ द मार्केट स्टार्ट्स टू शो अगेन अ वीकनेस, मतलब मार्केट फ्लैट खुल के इस लो को अगर 10 o'clock के पहले टेकआउट कर देता है, तो देन वी शुड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. एक डाउन ट्रेंड में हमको जाना पड़ेगा विथ दिस स्विंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ सैक्रोसैंक्ट स्टॉप लॉस एंड देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट कल थोड़ा बहुत एक गैप डाउन खुल जाए एंड अगर मार्केट इसके नीचे, आज के लो के नीचे अगर मार्केट गैप अप खुलता है, दैट इज 2450 के आसपास खुलता है, तो देन मार्केट के पास बाउंस होने के लिए भी एक अच्छा एक लेवल है बोथ ऑन फ्रॉम बोथ द साइड्स. ठीक है. नीचे की तरफ से मार्केट 23,900 23,950 के आसपास सपोर्ट ले सकता है एंड एट द सेम टाइम अगर मार्केट ऊपर आता है तो देन यहाँ पे मार्केट्स को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए. सो इट इज अ गुड थिंग इफ मार्केट स्टे समवेयर बिटवीन 24,200 एंड 24,000 फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 सेशन, सो दैट यहाँ पे मार्केट फिर से थोड़ा बहुत अक्यूमुलेशन होके समवेयर डाउन द नेक्स्ट वीक, अगले वीक में कोई एक ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है, तो आई वुड से दैट वुड बी अ सस्टेनेबल काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन. तो कल के लिए मेरा जो अप्रोच रहेगा, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एन अप्रोच रहेगा. मैं एग्रेसिवली मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा बिकॉज इफ द मार्केट्स आर गोइंग इन टू द वीकेंड विद अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, देन वील हैव लॉट ऑफ बुल ट्रैप्स. कल के लिए लॉट ऑफ बुल ट्रैप्स हो सकता है. बेसिकली मार्केट्स यहाँ पे ओपन होगा एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ सिनेरियो देगा एंड देन उसके बाद मार्केट्स वापस आ जाएगा एंड आई वुड नॉट पर्सनली expect or want the markets to close with a lot of bullishness going into the weekend. तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट्स थोड़ा बहुत कॉशन के साथ वीकेंड को अप्रोच करे सो दैट अगर मार्केट्स में ज़्यादातर लॉन्ग्स बिल्डअप नहीं हुआ है, देन वहाँ पे ट्रैपिंग होने का चांसेस कम हो जाता है एंड प्रॉबली माइट बी ओपनिंग फ्लैट और विद अ बिट ऑफ अ गैप अप ऑन अ मंडे. तो अगर वीक पॉजिटिव के तौर से शुरू होता है तो देन देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट ये जो हाई है 24,400 एंड 24,500 का लेवल जो है अगले आने वाले वीक में टेकआउट होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो. ठीक है. सो that would be my plan of action. So I'll be waiting for the markets to come to 23,900 to initiate some sort of a bullish trade in case of a gap down. अगर markets flat open होके इस low को 10 o'clock के पहले अगर तोड़ देता है, then I'd short the markets with this as some sort of a target. And अगर market
गैप अप खुल के यहाँ पे आता है तो देन यहाँ पे पैटर्न ढूंढने के बाद मैं यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा. बट यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड 10 ओ क्लॉक के पहले मार्केट 24,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, देन आई हैव नो एब्सोल्युटली नो इश्यूज गोइंग लॉन्ग ऑन द मार्केट्स. तो ये 4 सिनेरियो मेरे लिए है. एंड इवन इफ आई एम ट्रेडिंग टुमारो, आई विल बी ट्रेडिंग विथ ओनली प्रॉब्ली 20% साइज, बिकॉज वॉल्स के फ्रंट पे आई एम नॉट वेरी श्योर लाइक वेयर द मार्केट्स गोना क्लोज. जो 380 रुपीज का जो स्ट्रैडल है कल कहाँ पे खुल सकता है, शायद कल 400 पे खुल जाए या शायद 350 पे खुल के 400 पे क्लोज दे दे. वी नेवर नो बिकॉज मार्केट्स कैसे पोजिशनिंग करने वाला है गोइंग इनटू द वीकेंड, दैट डिसाइड्स द एंटायर रिस्क प्रीमियम प्राइसिंग. ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका एक्सपायरी आज कैसा रहा. लाइक फॉर मी इट वाज समवेयर अराउंड 0.4 क्लोज, 0.4 ग्रीन, एंड post 3 p.m. it was a decent amount of gain for me today because 78,000 राउंड नंबर पे आज मार्केट्स में क्लोज दे दिया. एंड फर्स्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि मार्केट्स यहाँ पे आके एक बाउंस दिया एंड आई गॉट अ लिटिल क्या बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट हो गया कि या चलो मान लो कि चलो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है कि सो दैट मार्केट्स इस रेंज में ही ट्रेड करने वाला है. बट आई वाज आल्सो टेकन बाय सरप्राइज व्हेन दिस लो गॉट टेकन आउट. बट यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलने के बाद मैंने थोड़ा पोजीशन को बैरिश बायस बनाया एंड 78,000 पे मैंने काफ़ी कोशिश की कि मार्केट को 78,000 के आसपास पिन करने का. बट देन आई हैड टू गिव अप एट दिस लेवल. बट व्हेन द मार्केट स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ, आई एडेड दो 78,000 पुट्स बैक एंड फाइनली 78,000 पे मार्केट्स जब क्लोज हुआ तो आई एंडेड एट अ डिसेंट लेवल फॉर द एक्सपायरी. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपके लिए एक्सपायरी कैसा रहा एंड आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.